or events have dual impact. Okay, so which means that whatever we do in business, it will have a dual impact. So it will impact two accounts, right? So, and when we say everything in accounting will impact two accounts at one point of time, and we say one will be debit and another one will be credit, and whatever we do in business, all transaction, all events have two aspects, one debit aspect, one credit aspect. This is called double entry system. Okay. Okay. Yes, So, clear. okay. So there will be some theory about double entry system, that how it is, that if somebody asks us that what is double entry system, we say it is a recording of business transaction which recognize both the aspects of the transaction, which means we will record dual aspects of each and every transaction. That is why it is called double entry system. So under this system, um, we you can say, okay, that we have already understood that under this system every transaction will have dual aspect, one aspect is debit, one aspect is credit, and under double entry system we will be um, uh, capturing, or we will be recording both the aspects of a single transaction. Now what will be the feature if we say that it is a double entry system? One is that it records both aspects, right? Secondly is that debit is always equal to credit. हेलो, जस्ट अ मिनट, पीशी एक मिनट आना, ये क्या आ रहा है? अच्छा तेरा फोन, ओके. ओके हर्षिका, यू आर देयर राइट? Yes. Okay, so the features of double entry system is that it records both the aspects of a transaction. Second, we say debit is always equal to the credit. When we are recording transaction, both the aspects, one will be debit, one will be credit, both of them will remain equal at all the times, right? Under this system we record all transactions are recorded. So we will not be leaving any transaction which has a financial impact on the business, right? We said that under accounting that we will be recording only those transactions which can be measured in money terms. So under this system we will be recording all transactions which can be measured in money terms and it has an impact on business. Okay, and we can find out, Yes. okay, we can find out what is the profit or loss of business, because we are recording all transaction, we are recording both the aspects of the business. It will help us to find out profit or loss occurred by the business. It will help us to find out errors, because at any point of time we can compare the debits and credits, and in case those are not telling, we can say there is something wrong and we can find out the errors, right? And prepare statement of we can prepare statement of assets and liabilities at any point of time, because what we are doing is we are recording the dual aspect, debits and credits. So assets and liabilities at any point of time will be as per the accounting equation. So accounting equations we read assets equal to
liabilities plus capital, right? So this will always be there when we are recording the dual aspects. Okay, so this is very important. Now you can read about the theory what is double entry system in your book. Okay, so now moving ahead, last time I told you that we can types broadly in business we can bifurcate the accounts into 5 parts. Okay, so one is capital. Okay, second is liabilities, third is assets, fourth is income or revenues, and fifth is expenses or losses, right? So broadly, if we bifurcate everything which is happening in the business, and if we try to um, categorize every single transaction, all transactions can be categorized into these 5 type of transactions or 5 type of accounts, right? So capital, we know it is related to the owner. Okay, liabilities means that when we are owing something to somebody, so when we need to pay to somebody on a high level basis, need to pay. When I say we means business, right? So everything what we will think about is from a business perspective. If business needs to pay somebody, or if there is an obligation to pay, then it will be called liability. Okay, assets are mostly which can help us to raise money, or which we own at any point of time, owned by business. Income and revenues, we said whatever we are earning, our sales or incomes. Expenses and losses, in order to run the business we have to pay some or do some expenses like salaries, rent, or sometimes we suffer losses, which means that say loss by fire, theft, pilferage is nothing but sometimes the nature of the material is such that supposedly you are dealing in flour, right, atta. So if you buy 5 kg, maybe by default 100 grams will be lost during the transit. So those can be pilferages. Okay, so broadly we can bifurcate all the transactions into these 5 parts. Okay, till now clear? Yes, clear. Okay, so just give me a minute. Okay, so when we say capital, now I will list down some of the examples here which will be helping us to find out that where the capital is impacted, right? So A started business with cash of rupees 1 lakh, right? So A is the owner. So owner started business with cash of 1 lakh rupees. Whether capital is impacted? Whether capital is Yes, impacted? Yes, yes, because if the owner
introduce any money in the business or any asset in the business, or he withdraws any asset or money from the business, we will say the capital is impacted. Okay. So A started Yes. business with cash of rupees 1 lakh. Similar way, A purchased a TV, you can say, and put it to business use. Whether capital is impacted? Yes. Okay. Yes, it is. Because, yeah. So both ways he is actually using his own money to put the asset to business use, right? So whether he introduce cash, whether he pays by check, so cash, check, goods, capital assets, irrespective of the nature of the contribution coming from the owner, it is a capital transaction. The capital comes into picture, right? Okay. So whether he introduce cash into the business, whether he deposit his own cash to business by check, whether he gives any kind of a goods, it can happen that supposedly you are dealing in, say, furniture, and there is a old furniture, you are dealing in old furniture, and there is your owner's personal furniture which is lying in his home, and he took that furniture to the shop and try to sell that through the shop. In that case, he is introducing the goods because you're dealing in furniture. So for you, it becomes goods, right? So goods is basically those materials, those products which we are dealing with, which we are trying to sell, right? Capital asset are those assets which we are not dealing in, but which are helping us to do the business, just like car, plant and machinery, land and building, right? Computer. These may be certain asset, irrespective of your nature of business, it can be capital asset. But if you are kind of a seller of computers, then those computers which are kept in the shop for the purpose of resale are your goods, but those computer which you are using to maintain your accounts are capital goods. Okay, till now clear? Yes, clear. Okay, so irrespective how the money is coming, as long as whether it is goods, money, capital asset, bank balance, if that money is coming from the owner, we will say capital is impacted. Okay, so what is the rule for capital accounts? So so whenever capital comes into the business, it means business is receiving it, right? So the rule for capital account is, when you receive it, you means business. On receipt of capital, it will be credit. Okay, and when you are paying, so when business is paying to owner, when business is receiving from owner, it is credit. When business is paying to owner, it is debit. Okay, clear? Yes. Mamu, please can you wait? I have to note it down. Okay, sure. Yes, done. Okay, so when we are receiving capital into the business, it is debit.
When we are paying anything to the owner, it is debit, right? Receiving capital credit, giving capital back is debit. Now think two scenarios. We will keep ourselves to very basic ones. Now owner started business with rupees 50,000. This is one. Secondly, owner withdraw capital of rupees 5,000. Okay, or withdraw, it can be written as withdraw cash for personal use. Okay, From business only. yeah. So what, see, what usually happens is when you are a sole proprietor or you are running a shop, so you started the business, right? You put 5 lakh rupees at the initial start, or 5 lakh rupees at the start of the business, and you started running your shop. Okay, now there is a rent to be paid for the house as well where you are living, right? As a proprietor or as a owner, you need to manage your own expenses as well. Now if you are putting a lot of money in the business, sometimes there is a very thin line that whether I am paying from my own wallet, or sometimes they just pull the business money and pay the rent for their own house, right? It can happen, right? So they can withdraw cash for their personal use. So as we said in the first uh, concept, which is called legal entity concept, we said that owners is different from the business. Now whatever he will do, whether he gives money to business or whether he takes money from business, both the things we have to record. So whenever he is giving money to the business, we have to pay it back. We assume that it is a loan from the owner, right? And whenever he is taking money from the business, we assume that he need to pay us back, right? So when I am using you us, it means that we are assuming ourselves as business. Got it? Yes. Okay, so when owner is starting business by paying 5 lakh rupees, what we will do to the capital? Debit or credit? Um, first is हाँ डेबिट नहीं एक मिनट हम्म, आराम से. receiving हाँ receiving business is receiving from owner ना तो credit. Yeah, very good. So whenever business is receiving from owner, the capital should be credit. Okay. In the second case, when business is paying back to the owner, or when owner is withdrawing from the business, the capital should be Debited. debited. Okay, debit. Right. Now, now, now listen to me very carefully. Whenever owner is paying to the business, the name of the account will be capital. Okay. And Okay. whenever the owner is withdrawing something from business, okay, it is technically known as drawings. DRAWINGS. Okay, he is drawing money from the business for his personal use. This is very important. Any money drawn by owner of the business for his personal use is a capital transaction. It needs to be debit, but the name we will be calling it drawings. Got it? Yes. Okay, it is only the name. We as a business, we read the concept which is called disclosure, right?
we said under disclosure that to the extent possible, everything should or objectivity, we said everything should be properly disclosed to the readers of the accounting information. Now, to avoid a scenario that a person is introducing capital, say time and again, and he is also withdrawing. Now we wanted to keep both the transactions separately. So whenever he is giving money to business, we will keep it under capital. So we will record that under capital so that at any point of time, if somebody asks me that how much money, if owner asks me how much money I paid to the business, we will just add whatever is there under capital and we'll say that, okay, you introduce 5 lakh at the start, then after 3 months you paid us 1 lakh rupees. So business will say that total 6 lakh of capital you have given to us. Okay. Then owner can ask that, okay, how much I have taken back from you. Okay. Now, if everything is recorded under capital, it will be very difficult to segregate those, right? So maybe for the purpose of disclosure, they named it drawings. Okay. So that it helps us to put everything which the owner is taking from the business as a separate account altogether, and that is why it is recorded under drawing. So some, if owner asks us that, okay, what is the money I have taken from you, we will just go to the drawing, see that, okay, this is 5,000 every month you are taking from us, so in last 12 months you have taken 60,000 rupees from us. Okay. But both these transactions, they will follow the rule of capital. Okay. Okay. Anything which comes to your mind or any clarification you want, you can ask. I just need to ask, जैसे इसमें 5 parts है ना, मतलब types of account 5 है, Hmm. तो 5 के मतलब 500 के अलग अलग rules है ना? Yes. ठीक है. Right. So basically मैं तुझे एक ब्रॉड रूल बता देता हूँ. ब्रॉड रूल क्या है? ब्रॉड रूल ये है कि जब भी बिजनेस को कुछ मिलेगा, ओके, whenever business is getting benefited, जब बिजनेस को कुछ मिलता है वो हमेशा डेबिट होगा. ओके. जो चीज बिजनेस को मिलेगी वो डेबिट होगी. और Okay. अगर कुछ बिजनेस की ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है, अगर मुझे कुछ पे करना है अभी या बाद में, वो क्रेडिट होगा ब्रॉडली. ओके. सो नाउ अगर तुम सोचो कि कैपिटल क्रेडिट क्यों होती है, तुम तो बोलोगी कि बिजनेस को मिला, ये तो अब मिला तब, हाँ. है ना, हाँ पर जी. मिला नहीं है. बिजनेस को मिलेगा क्या? कैश. ठीक है. हमने बोला ना हर ट्रांजैक्शन के दो दो अकाउंट होंगे, एक मिलेगा और एक देना पड़ेगा. राइट. तो हर ट्रांजैक्शन में दो चीजें होंगी साइमल्टेनियसली. जैसे अगर मैं तुमको पेन दूं और बोलूं कि ये 5 रुपए का है, अगर मैं बेचूं तुमको, ठीक है, मैं हर्षिका को एक पेन सोल्ड करूं 5 रुपए में. नाउ इसमें दो दो चीजें साइमल्टेनियसली होंगी. वन इज, मैं पेन आपको दूंगा और आप मुझे 5 रुपए दोगे, तो मैं 5 रुपए 5 रुपए मेरे पास आएंगे और पेन मेरा चला जाएगा. तो एक चीज आएगी एक चीज जाएगी. राइट. हाँ. Yes. ठीक है. तो किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम थोड़ा सा बेसिक की तरफ चले जाते हैं. बेसिक में क्या होगा, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी तो कुछ आएगा इनकमिंग और कुछ आउटगोइंग होगा. ठीक है. कई जगह पे बहुत क्लियर हो जाएगा ये. क्लियर क्या है? जैसे कैश आया और गुड्स गई. ठीक है. टीवी खरीद लिया हमने, टीवी आ गया, कैश चला गया. ओके. हमने कंप्यूटर खरीद लिया, कंप्यूटर आ गया हमारे पास बिजनेस में, और बैंक से पेमेंट कर दिया तो बैंक बैलेंस कम हो गया. तो बैंक एक तरह से बैंक का बैलेंस हाँ जी. लेस हो गया. ठीक है. Less हो एक गया. तरह से चला गया, बैंक का पैसा चला गया, हम हमारे बैंक में पड़ा था वो कम हो गया, एक तरह से गया. ठीक है. फिर हमने एक कार खरीद ली और बैंक से पेमेंट कर दिया तो बैंक का पैसा और कम हो गया. फिर क्या किया हमने? गुड्स बेच दी. जैसे मैंने बोला कि मैंने हर्षिका को 5 रुपए का पेन बेच दिया, तो उसमें क्या हो जाएगा हमारे पास में, फिर से वही पहली ट्रांजैक्शन कैश आ जाएगा, गुड्स चली जाएगी. फिर मैंने क्या किया,
मेरी कार पुरानी हो गई थी जो मैंने खरीदी, 6 महीने के बाद मैंने वो कार बेच दी। तो जब कार बेची तो मेरे को किसी ने चेक दे दिया, तो बैंक अकाउंट में ऐड हो जाएगा पैसा मेरा, और कार मेरी चली जाएगी। ठीक है, तो ये तो बहुत क्लियर ट्रांजेक्शन्स हैं जो तुम देख पाओगे कि क्या आ रहा है और क्या जा रहा है। नाउ थिंक जहां पे ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है। ठीक है, मान लो आपने बैंक से लोन लिया। ओके, Okay. आर यू विद मी? Yes, yes, I am here. है ना? ठीक है, तो आपने बैंक से लोन लिया ना। जब आप लोन लोगे तो बैंक क्या करेगा, आपको पैसे दे देगा, आपके अकाउंट में जमा कर देगा। यूजुअली ऐसा ही होता है। ठीक है, तो आपके पास क्या आ गया, बैंक बैंक में पैसा आ गया, ऐड हो गया बैंक में पैसा। ठीक है, अब गया क्या? Yes. गया क्या? कुछ गया नहीं ना? अभी तो नहीं, अभी तो नहीं है ना? गया। बैंक ने आपको, आपने क्या किया होगा, आपने एक डॉक्यूमेंट साइन करके दिया होगा बैंक को कि मैं ये 3 साल बाद या 5 साल बाद या 1 साल बाद ये पैसा आपको वापस कर दूंगा। ठीक है, राइट? Yes. तभी तो कोई आपको लोन देगा। लोन का मतलब ये होता है ना, आपको एक टाइम के बाद वो पैसा वापस करना है। हाँ। राइट, तो आपके पास पैसा आपको अभी तुरंत मिल जाता है, बट आपको वो वापस करना है। तो क्या गया, हमारी ऑब्लिगेशन गई, हमारी ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई। ऑब्लिगेशन इज क्रिएटेड, राइट? Yes. सो ऑब्लिगेशन किस किस नाम से क्रिएट हुई? बैंक लोन। Bank loan. ओके, हमने बोला कि भाई पैसा तो आ गया, पर मुझे देना भी है ये, तो मुझे 2 साल बाद 1 साल बाद बस मुझे देना पड़ेगा। तो मुझे वो भी रिकॉर्ड करना है कि भाई मुझे कितना पैसा लेना है या मेरे पास है, और कितना देना है किसी को। तो ये दोनों चीजें मैं रिकॉर्ड करता हूँ। तो जब हम लोन लेते हैं तो बैंक के एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाते हैं कि मुझे बैंक को वो पैसा देना है। ठीक है, सिमिलरली जब मैंने बोला कि सेपरेट लीगल एंटिटी में जब ओनर ने आपको पैसा दिया, तो आपके पास या तो कैश आया होगा या उसने आपके बैंक में जमा कर दिया होगा, बिजनेस के बैंक बैंक अकाउंट में। ठीक है, अगर कैपिटल अकाउंट की ट्रांजैक्शन है Yes. तो गया क्या? जब ओनर ने आपको पैसा दिया तो क्या एक ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई? मैंने बोला था कि ओनर को अलग मान के चलना। लाइबिलिटी बन गया ना वो लोन हमारे ऊपर। वो लोन नहीं होता है, ठीक है, क्योंकि वो ओनर है तो उसको हम लोन नहीं बोलते हैं। राइट, ओके। उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल। कैपिटल। So capital is also a obligation of business. ठीक है, तो जब भी वो कैपिटल हमको देता है तो हम उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। हम बोलते हैं कि ठीक है भैया आपने कैपिटल दे दी, क्योंकि बिजनेस को हम सेपरेट मानते हैं ओनर से। ठीक है, ये हमेशा याद रखना, इसीलिए हमने सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़े थे ताकि बाद में हमको कंफ्यूजन ना हो। तो जब भी कोई ओनर चाहे है वो कैपिटल देता है बिजनेस को, तो बिजनेस कहता है कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं इसको लोन की तरह ट्रीट करूंगा, बट क्योंकि तुम ओनर हो तो मैं लोन नहीं लिखूंगा, इसका नाम मैं कुछ और दे देता हूं, मैं इसको कैपिटल बोलूंगा। ठीक है, ये तुम्हारी कैपिटल है जो मेरे पे ऑब्लिगेशन है। तुमने मेरे को स्टार्ट किया, बिजनेस में पैसा डाला, मैं तुमको कभी ना कभी ये वापस कर दूंगा। यूजुअली कैपिटल के साथ में ये 2 साल 5 साल नहीं एसोसिएटेड होता। हम जब मेन है कि ये ऑब्लिगेशन हम रिकॉर्ड कर लेते हैं कि हमको ये किसी ने पैसा दिया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि बिजनेस को हम ये मान के चल रहे हैं कि ये बिल्कुल ऑल टुगेदर अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, यस। ओके। तो जब भी हमारे पास कैपिटल आती है तो हमारे पास ये तो आ जाता है, कैश और बैंक। ठीक है, पर कैपिटल की क्या क्रिएट होती है? ऑब्लिगेशन। तो जब भी ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है, मैंने बोला था या तो हमने किसी का, या तो किसी को कुछ दे दिया जो गया बाहर, वो यूजुअली क्रेडिट हो जाएगा, या फिर जब ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाएगी जो मुझे बाद में देना है, वो क्या हो जाएगा? क्रेडिट। ठीक है, सिंपल रूल समझ में आ गया? हाँ जी। जो हमारे पास आएगा या बाद में आना है। ठीक है, ओके, सो हम लिख लेते हैं इसको। रिसीव्ड और टू बी रिसीव्ड मोस्टली, ओके, डेबिट। ओके, यस।
और आउटगोइंग जो जा रही है बाहर चीजें, और टू बी पेड जिसको बाद में देना है किसी को, ये क्या होगा? क्रेडिट। ओके, यस ये मोटे मोटे रूल्स हैं, बट हम सबके रूल समझने की कोशिश करेंगे। कैपिटल का रूल आपको समझ में आ ही गया, मैंने आपको जनरल रूल से भी बता दिया, क्योंकि कैपिटल एक ऑब्लिगेशन है जो हमको बाद में देनी है, तो कैपिटल क्रेडिट होती है। बट हमारे पास कैपिटल के साथ में क्या आता है? कैश आ जाता है, तो हम कैश को डेबिट कर देंगे क्योंकि वो हमारे पास आ रहा है। तो उसका रूल है, वो ऐसे ही नहीं हम डेबिट कर रहे, हम बोल रहे हैं एसेट्स। एसेट वो सारी चीजें हैं जो बिजनेस के अंदर पड़ी हैं, जो हमारी हैं, जो हम कभी भी बेचेंगे या डिस्पोज ऑफ करेंगे तो हमको उसके बदले में पैसे मिलेंगे। उन सारी चीजों को जो जो हम यूज कर सकते हैं बिजनेस के अंदर, जो हमारी हैं, उनको क्या बोलते हैं? एसेट्स। राइट? यस ओके, तो एसेट्स कौन कौन से हो सकते हैं बिजनेस के अंदर? आपके पास आपके कैश हो सकता है, आपके बैंक में लैंड बैलेंस, ओके, लैंड हो सकती है, और क्या हो सकता है? बिजनेस का सोचो, शॉप का सोचो, अगर आपकी मिठाई की दुकान है, और क्या क्या हो सकता है? कैश पड़ा होगा आपके गुल्लक में, या आपके ड्रॉर में, राइट? बैंक में आपके पैसा हो सकता है, जिस दुकान में आप काम कर रहे हो वो आपकी खुद की हो सकती है, तो लैंड हो सकती है, बिल्डिंग हो सकती है, राइट? और क्या होता है वहां पे? दुकान के अंदर आप जाते हो, एयर कंडीशनर होते हैं कि नहीं होते? यस टेबल्स चेयर्स है ना, फर्नीचर होता है, सारे टेबल चेयर फर्नीचर को हम फर्नीचर बोल देते हैं। ओके, और क्या होता है? लड्डू होते हैं, जलेबियां होती हैं, है ना, पूरी चने, ये सब होता है ना, वो उसको बेच के उसको पैसा हाँ मिलता जी है हाँ ना, जी राइट? हाँ जी तो क्या होता है? गुड्स। जो भी चीजें हम गुड्स बेचने के लिए रखते हैं उनको एक ब्रॉडर कैटेगरी में हमने बोल दिया ये गुड्स है। ठीक है, और क्या होगा? टेबल हो गया, ये सब कुछ हो गया। वाटर कूलर होता है, ठंडा पानी करने वाला, चलो इसको लिख लेते हैं अलग से, इसको मशीनरी बोल सकते हैं। ठीक है, फिर यूटेंसिल्स होंगे बहुत सारे, राइट, जिसमें वो आपको खाना परोसता है, ग्लास होंगे कांच के, क्रॉकरी होगी, यूटेंसिल्स या क्रॉकरी होगी, राइट? तो ये सारी चीजें हो सकती है ना। फिर क्या हो सकता है? कार हो सकती है, कंप्यूटर हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो बिजनेस के अंदर होती है, इनको हम कंबाइन टोटल क्या बोलेंगे? हम इनको, कि ये मेरे एसेट्स हैं, ये मेरे पास पड़ा है सामान। ठीक है, ओके। तो मैं कभी भी इनको जब बेचूंगा या बेच सकता हूं, जैसे कार है मेरे पास में, मान लो मुझे किसी को पैसे देने हैं, अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं कार बेच के उसको पैसे तो दे सकता हूँ, वो ज्यादा आएगा उसका वैल्यू या कम आएगा जो भी आएगा, बट इट इज माई एसेट, राइट? यस ओके, सो एसेट का रूल क्या है? बिकॉज ये हमारा, जैसे मैंने बोला कि जो हमारे पास है या जो आने वाला है उसको हम, उसका रूल क्या होता है? अगर अगर ये आ रहा है, ये हमारे पास आया, ठीक है, और टू बी रिसीव्ड, कुछ भी हमारे पास आना है, कोई ऐसी ऑब्लिगेशन क्रिएट हुई किसी और पे कि भाई तुमको देना, अगर मैंने किसी को लोन दे दिया, मान लो बिजनेस ने किसी को लोन दे दिया, ठीक है, कि अपने वहां पे कोई सैलरी पे काम करता है, कोई एम्प्लॉय है आपकी दुकान पे, मिठाई बनाता है, अब उसकी मम्मी बीमार हो गई, उसने बोला कि सर मेरे को लोन दे दो, मैं 1 साल बाद वापस कर दूंगा, मुझे 10,000 रुपए चाहिए अर्जेंटली। तो दुकान चला रहे हो तो देना पड़ेगा ना उसको, यस राइट? तो आपने उसको दिया, तो अब क्या किया आपने? लोन दिया, तो ये पैसा आपको वापस मिलना है साल बाद, राइट? इट इज द ऑब्लिगेशन क्रिएटेड ऑन अदर पर्सन टू पे बैक टू बिजनेस। तो एसेट हो गया यस ना आपका, एसेट हो गया एसेट ना, यस राइट? तो जो भी आपके पास आ रहा है या आने वाला है उसको क्या करेंगे हम? डेबिट। ओके, सिंपल रूल। और जो आउटगोइंग है यस क्लियर क्रेडिट उसको क्रेडिट कर देंगे। ठीक है,
इसमें कोई भी दिक्कत नहीं ना? नहीं। ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। लायबिलिटीज। नाउ ये जब हम बात कर रहे हैं जनरल, तो तुमको ब्रॉडली रूल तो समझ में आ ही गया होगा, क्योंकि कैपिटल इज ऑल्सो अ लायबिलिटी। ठीक है, उसको बोलते कैपिटल हैं क्योंकि वो ओनर की तरफ हमारी लायबिलिटी है। तो लायबिलिटी क्या होती है? हमने क्या समझा लायबिलिटी? जो हमको पैसा देना है किसी को वापस। ठीक है, हाँ जी। दीज आर यूजली ऑब्लिगेशंस ऑफ बिजनेस, राइट? बिजनेस की ऑब्लिगेशंस है, मतलब हमारी ऑब्लिगेशन है जो हमने पैसा लोगों को देना है। ठीक है, बिजनेस ओज दिस टू आउटसाइडर्स। ओके, यस। अब ये मैंने जब आउटसाइडर लिख लाइक दिया, सैलरी, सैलरी देनी है अगर बाकी है तो। देनी तो ओके, हाँ। अगर ओके। दे दी तो काम खत्म हो गया। ओके। समझ रहे हो? हर महीने हम पैसा दे देते हैं, जो जो दे दिया वो खत्म। तो इसमें क्या क्या होगा? आउटस्टैंडिंग सैलरी, राइट? आउटस्टैंडिंग सैलरी मींस लेफ्ट आउट सैलरी। तो अभी पे नहीं की हमने, जो पे कर दी हाँ, तो वो जो खर्चा हो रहती है गया ना। अभी जो। हाँ, ठीक है, जो जो ठीक पे है। नहीं की है वही तो ऑब्लिगेशन होगी ना। हाँ जी, हाँ जी। अगर किसी को दे दिया तो काम खत्म ना, वो तो खर्चा हो गया। ओके। समझ रहे हो? हाँ जी, फाइन। इन दोनों को डिफरेंशिएट करो। ऑब्लिगेशन जो अभी पे नहीं हुई है, जो जो मैंने देनी है अभी, तो ये किसी भी एक पर्टिकुलर डेट को अगर मैंने किसी का कुछ पैसा देना है, इट विल ऑल बी रिकॉर्डेड एज अ लायबिलिटी। ओके, हेलो? यस, यस। हाँ, क्लियर। ओके। सो यूजुअली क्या होता है जब बिजनेस आप करते हो, आपने मिठाई की दुकान तो खोल ली ना, क्या आपको क्या क्या चाहिए होगा मिठाई की दुकान चलाने के लिए? आपको आटा चाहिए पूरी बनाने के लिए, चने चाहिए, प्याज चाहिए, आलू चाहिए, मैदा चाहिए, चीनी चाहिए, राइट? ये सारी चीजें आपको चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, जो आप जिससे आप मिठाइयां बनाओगे फिर बाद में बेचोगे। नाउ अगर हर टाइम पे हम चीनी वाले का हिसाब करते रहेंगे रोज रोज, तो बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, राइट? किसी टाइम हमारे पास उतने पैसे होंगे जेब में, किसी टाइम नहीं होंगे। तो यूजुअली क्या होता है, तुमको पता है ना, दुकानदार क्या करते हैं आपस में? क्रेडिट पे सेल परचेज करते हैं, राइट? ओके, तो यूजुअली हम बोलते हैं ना कि लाला जी आप भेजते रहो, मैं अपना एम्प्लाई भेज रहा हूं, मैं आपको महीने के महीने सेटल कर दूंगा, आप मेरे को आप लिखते रहो मेरे अकाउंट में, कहते हैं ना? हाँ जब जी, तुम हाँ जी। जब तुमको भी कभी पास की पड़ोस की कोई दुकान में भेज रहे होंगे, तो शालू कभी कहती होगी ना कि तू ले आ, मैं बाद में दे दूंगी उसको, हाँ, उधार। है ना? तो उसको हिंदी में हम बोल देते हैं उधार, राइट? तो बिजनेस में जो ट्रांजैक्शन होती है मोस्टली, या तो हम जब 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 बिजनेस किसी से खरीदता है, राइट, तो हम उधार ले आते हैं और बाद में हमको देना होता है। तो इनको टेक्निकल टर्म में क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स, जिसको आपने बाद में पैसा देना है, जो आपने प्रॉमिस किया। ओके, इनको क्या कहते हैं? क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स। हाँ जी। ओके, तो ये क्या हो गई? आपकी लाइबिलिटी हो गई कि नहीं? यस, क्योंकि वो राइट, अभी देने हैं। हाँ, तो वो उस पर्टिकुलर डेट को हमको वो पैसा अभी दिया नहीं है तो वो देना है, तो इट इज द ऑब्लिगेशन ऑन बिजनेस, राइट? जो हमने पढ़ा कि ये ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेस जो होती है वो हमारी लायबिलिटी है, राइट? और क्या हो गया? यस। लोन ले लिया हमने बैंक से, लायबिलिटी हुई नहीं कि नहीं हुई हमारी? हाँ, हुई। ठीक है, तो ऐसी कोई भी ट्रांजेक्शन जो हम जो हमारे ऊपर, बिजनेस के ऊपर एक ऑब्लिगेशन है जो हमको कभी ना कभी पे करनी है, दैट विल बी ट्रीटेड एज लायबिलिटी, राइट? तो लायबिलिटी का रूल क्या होता है? जब भी ऑब्लिगेशन क्रिएट होती है, ठीक है, तो क्या करेंगे? उसको क्रेडिट। ओके, सो हाँ जी। सो या फिर ओके, अभी हम इसको टेक्निकल टर्म में देखते हैं, फिर हम मैं सिंप्लीफाइड कर दूंगा। सो व्हेन वी क्रिएट ऑब्लिगेशन,
हम क्या करेंगे इसको, सॉरी, जब हमने नई ऑब्लिगेशन क्रिएट की तो क्या करेंगे, क्रेडिट, राइट। मैंने नया नया लोन लिया बैंक से अभी, तो क्रेडिट करेंगे, और व्हेन वी पे देम तो क्या कर देंगे उनको, डेबिट। डेबिट। ओके। जब हम नया कोई ऑब्लिगेशन बिजनेस के ऊपर क्रिएट करते हैं, जब जैसे मैंने तुमको बोला कि तुम दुकान के एम्प्लॉय को भेज दिया और बोला कि चलो 5,000 रुपए की चीनी ले आओ, तो वो 5,000 रुपए की जैसे ही वो चीनी लेके आया, पैसे तो देके नहीं आया, तो इट बिकम्स अ क्रेडिट। आप क्रेडिटर को क्रेडिट कर दोगे, ठीक है। तो अब नई ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई, ये नया पैसे हमको देने हैं बिजनेस को, तो वो फिर अगले दिन आपने दूसरे एम्प्लॉय को भेजा कि यार ये 2,000 रुपया लाला जी को दे आओ, कल चीनी मंगवाई थी। तो जब वो 2,000 रुपया वापिस करेगा, तो वो क्या करेंगे, उस लायबिलिटी को डेबिट कर देंगे, ठीक है, बिकॉज यू आर पेइंग ऑफ द ऑब्लिगेशन। जब आप ऑब्लिगेशन को पे कर रहे हो पार्शियली या फुल्ली, आप उसको डेबिट कर दोगे, राइट। एनीथिंग टिल नाउ? क्लियर। क्लियर, ओके जी। तो अब हम इनको पहले इन जो हमने ये तीन चीजें पढ़ी हैं उनको सिंप्लीफाइड कर लेते हैं। ओके, सो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कैपिटल, जब भी हमने बोला कि नई कैपिटल आएगी तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो इसका मतलब क्या है, जब कैपिटल इंक्रीज होती है तो क्रेडिट होता है, और कैपिटल डिक्रीज होती है तो डेबिट होता है। ओके, फिर है लायबिलिटी। लायबिलिटी कैपिटल सिमिलर ही है, दोनों सेम कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। अगर लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो डेबिट, और अगर लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो क्रेडिट, राइट। फिर एसेट्स है हमारे पास में। एसेट का क्या रूल है, एसेट अगर इंक्रीज होते हैं तो डेबिट, और डिक्रीज होंगे तो क्रेडिट। यहां तक कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? क्लियर है। ओके, आगे बढ़ जाएं। यस। गुड। अब उसके बाद में है हमारे पास में दो रह गए हमारे, ठीक है, रेवेन्यू या हम कहें इनकम, ठीक है। तो रेवेन्यू क्या होता है, रेवेन्यू को आप कह सकते हो कि सेल्स भी, कई जगह पे रेवेन्यू का मतलब सेल्स भी होता है, या कोई भी चीज जो आप किसी चीज को बिजनेस के अंदर जो रिसीव करते हो, तो आपकी एक तरह से रिसीट्स है, राइट। जो भी चीजें आपके पास आती हैं बिजनेस के अंदर, तो वो रिसीट्स है, राइट, जो चीजों को बेच के आती हैं। तो अगर आपकी मिठाई की दुकान है, जब आप मिठाई को सेल करोगे तो जो भी आपको पैसा मिलेगा वो आपका रेवेन्यू है, राइट। और इनकम को क्या होती है, जैसे इनकम, इनकम में क्या क्या आ जाएगा, मान लो इनकम क्या हो सकती है आपकी, मान लो आपने बैंक में पैसे जमा कर रखा है तो इंटरेस्ट हो सकता है, राइट। आपको बैंक इंटरेस्ट देता है ना, हर 3 महीने बाद, 6 महीने हाँ। बाद, यस यस। ठीक है। हाँ फिर जी। कई बार आपको कमीशन मिल जाती है, कोई भी चीज किसी की बेचने में हेल्प कर दी, या अ, या आपने जिससे माल मंगवाया, जो आपने 5,000 की शुगर मंगवाई, तो वो बंदा, क्योंकि आप एक बहुत बड़े ग्राहक हो उसके, तो 5,000 की चीनी कोई रेगुलर घर वाला, घर तो कोई खरीदता नहीं है, तो वो आपको कह देता है कि चलो अगर आपने मेरे से 50 किलो चीनी खरीदी तो मैं आपको उस पे कुछ डिस्काउंट दे दूंगा। आपको डिस्काउंट मिल सकता है कि नॉर्मल प्राइस तो हम 50 रुपए किलो बेचते हैं, तो आपको 45 रुपए किलो दे देंगे, तो 5 रुपया पर केजी के हिसाब से आपको कोई डिस्काउंट दे सकता है वो। तो ये आपकी इनकम हो सकती है, राइट, ठीक है।
आपको कोई कमीशन मिल सकती है कहीं से, आपने किसी और का कोई सामान बिकवा दिया या कुछ भी इस तरह का, तो आपको कमीशन मिल सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है, इंटरेस्ट मिल सकता है आपको, राइट? ओके। लाइक जैसे जो सेल्स है, जैसे वी आर सेलिंग, हमारे जो गुड्स हमने जो सेल करे, हम्म। उस वो जो हमें पैसा मिला वो रेवेन्यू में आता है या इनकम में? रेवेन्यू, उसको रेवेन्यू बोलते हैं, रेवेन्यू। है ना? इनकम होती है जैसे ठीक है, प्रॉफिट हो गया, जो प्रॉफिट है वो इनकम है। प्रॉफिट। ठीक है, ओके। ठीक है, पूरी सेल तो आपकी इनकम नहीं होती ना, वो रेवेन्यू होता है, जो ग्रॉस होता है ना, जिसमें से अभी खर्चे निकाले नहीं है, तो वो रेवेन्यू होता है। ठीक है, ओके। पर प्रॉफिट तुम्हारी हम कह सकते हैं कि ये मेरी इनकम हो गई, समझ गए? पर दोनों की ट्रीटमेंट सेम है, हाँ जी। मतलब दोनों ठीक का है, रूल सेम रहेगा, राइट? ओके। ओके। तो यस। तो इनका रूल क्या है भाई? जब हमको रेवेन्यू मिलता है, ठीक है, या इनकम मिलती है, या गेन होता है कोई, आप गेन भी इसके अंदर डाल लो, ठीक है, कोई भी गेन हो जाए, तो जब ये होता है हमको, जब ये मिलता है, व्हेन वी गेट रेवेन्यू, इनकम और गेन, देन हमने इसको क्रेडिट करना है। ठीक है, सब इनकम्स, सारे गेन्स, सारे रेवेन्यूज कहां जाएंगे? क्रेडिट में। ओके। क्रेडिट। ओके। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, जो हमने ऊपर पढ़ा था ये, अगर मैं इसी को आगे थोड़ा सा बढ़ा दूं, तो यहाँ पे अगर रेवेन्यू भी लिख दूं, तो रेवेन्यू क्या होगा? जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो क्या होगा? क्रेडिट, राइट? जब हमारा इनकम बढ़ेगी, हमारा गेन होगा, ज्यादा होगा, तो हम उसको क्या करेंगे? क्रेडिट। ओके। और जब हमारा गेन कम होगा, ओके, जब हमारा हाँ जी। रेवेन्यू कम होगा, यूजुअली वैसे क्या होता है, दीज आर ऑलवेज टू बी क्रेडिटेड। क्योंकि क्या होता है, अगर 1 रुपया भी हुआ तो कम ज्यादा क्या, किससे कंपेयर करूं? रेवेन्यू हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो नहीं हुआ, माइनस रेवेन्यू कैसे होगा? माइनस रेवेन्यू तो होता नहीं है, राइट? पर फिर भी हम बैलेंस करने के लिए लिख देते हैं, अगर कम होता है तो डिक्रीज, ज्यादा होता है तो इंक्रीज। बट ये हमेशा याद रखना कि ये जो डिक्रीज वाला पोर्शन है ना, इसकी तुम्हारे को एग्जाम्पल नहीं मिलेंगी ज्यादा। ठीक है, तो हम सिंपल वाला सोच के चलते हैं कि जब भी रेवेन्यू आएगा हमारे पास में, तो हम उसको क्रेडिट करेंगे। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके। तो इसका मतलब क्या हुआ, रेवेन्यू कभी जाता तो है नहीं, आता ही आता है। तो जाता क्या है फिर? एक्सपेंस। तो ये एक दूसरे का एक तरह से उल्टा कह लो, ये और ये, राइट, ये एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शन है। रेवेन्यू आता है तो जाता क्या है? एक्सपेंस हो जाता है हमारा, लॉस हो जाता है। ठीक है, राइट? ओके, ओके। इसीलिए मैंने बोला कि ये डेबिट कभी भी नहीं होता रेवेन्यू, क्योंकि रेवेन्यू तो आता ही आता है, जो कुछ भी होगा ज्यादा से ज्यादा जीरो रहेगा। भाई ऐसा कैसे कह सकते कि -1 की इनकम हुई है हमारे को? ऐसा तो होता नहीं ना, कभी भी आएगी तो आएगी, नहीं आएगी तो नहीं आएगी, तो ज्यादा से ज्यादा जीरो होगा कि नहीं हुआ रेवेन्यू। अब नहीं हुआ तो रिकॉर्ड क्या करना, जब हुआ ही नहीं, जब कोई इम्पैक्ट ही नहीं हुआ कुछ। जब 1 रुपया आया तो 1 रुपया आया, तो क्रेडिट करना पड़ेगा रेवेन्यू को। बट क्या जाता क्या है? एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, राइट? एक्सपेंसेस हमारे कौन कौन से हो सकते हैं? तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर रेवेन्यू को क्रेडिट करते हैं, तो एक्सपेंसेस और लॉसेस को क्या करेंगे? सबको डेबिट। उल्टा ही होगा ना भाई, जब इनकम हो रही है तो क्रेडिट कर रहे हैं, तो जब खर्चा होगा तो डेबिट ही करना पड़ेगा ना, राइट? हाँ जी। कुछ भी ना समझ में आए तो पूछ लेना, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तुमको बीकॉम फाइनल तक काम आएगा। ओके। ओके, सारे चैप्टर इस पे बेस्ड हैं, अगर किसी को ये तो आती है। हम्म। इसमें भी है ना कि जैसे हमने ऊपर लिखा रेवेन्यू और इनकम, हमारा जब इंक्रीज होता है तो क्रेडिट, और
एक्सपेंस और लॉस में जब इंक्रीज होगा तो वो डेबिट होगा। यस यस यस, ठीक है। ठीक है। हाँ जी। इसमें भी मैं वही बात करने वाला था तुमसे कि अगर मैं मान लो इसको वही टेबल में लिखूं, ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। नाउ यहां मैंने लिखा एक्सपेंसेस और लॉसेस, ओके। तो मैंने क्या कहा कि जब ये इंक्रीज होगा, अब इंक्रीज क्या होता है, एक्सपेंसेस तो होता है या नहीं होता, राइट? या तो होगा एक्सपेंस या नहीं होगा। अब इंक्रीज क्या, कोई कोई मेजर तो है नहीं। 1 रुपया भी मान लो मेरे को रिक्शा का भाड़ा देना पड़ा तो देना पड़ा, नहीं तो नहीं, या तो जीरो होगा या तो होगा, राइट? सो ये वाली एग्जांपल नहीं मिलेंगी तुमको, क्योंकि जैसे ही ये कम होगा, मोस्टली हम बात करेंगे कि हमारा रेवेन्यू हो रहा है। माइनस में तो होता नहीं है ना कभी भी खर्चा, या तो होता है या नहीं होता। तो जब भी खर्चा होगा, बेसिकली व्हाट वी आर सेइंग कि whenever we make any expense or suffer any loss, we have to do a debit. Okay? यस। अच्छा मामू, आई नीड टू टेल यू कि कल जो क्लास है वो हेलो, वो क्लास मॉर्निंग में रख सकते हो? कल संडे को? हाँ, लाइक अराउंड 11 और समथिंग, मतलब अर्ली मॉर्निंग में। हाँ हाँ, बिल्कुल। हाँ, क्योंकि ना मेरे को आफ्टर 12 और आई गेस आफ्टर 1 o'clock मेरे को जाना है। हाँ हाँ, नो वरीज नो वरीज। ठीक है। ठीक है, इस क्लास के बाद में वी कैन डिसाइड ऑन द टाइम। ओके। ओके। बस आप मेरे को मैसेज कर देना, मैं लॉग इन कर लूंगी। अच्छा, पहले मुझे ये बताओ ऑनेस्टली, तुमको समझ में आ रहा है मतलब जो मैं बोल रहा हूँ? मैं आई एम ट्राइंग कि मैं हिंदी में बोलूं, जैसा भी मतलब बहुत सिंप्लीफाइड वे में बोलने की हाँ। कोशिश कर रहा हूँ, बट हाँ अगर जी, तुमको, मेरे को समझ आ रहा है। है ना, कुछ समझ में नहीं हाँ आए तो जी, हाँ जस्ट जी। लेट मी नो, है ना, सो दैट हाँ हाँ। वी कैन मेक एडजस्टमेंट्स टू व्हाट वी, ओके। हाउ वी नीड टू प्रोसीड। ओके। ओके। सो नाउ हमने 5 चीजें, 5 अकाउंट पढ़ लिए, 1 2 3 4 और 5। हमने पढ़ा कि कैपिटल क्या होती है और उसके रूल्स पढ़ लिए। रूल्स में हमने कहा कि अगर कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट करेंगे, और अगर कैपिटल कम होगी तो डेबिट करेंगे। फिर हमने कहा लायबिलिटीज, ठीक है, इसका रूल सेम ही होता है कैपिटल के हिसाब से। हमने कहा बढ़ेगी तो क्रेडिट, कम होगी तो डेबिट। फिर हमने कहा एसेट्स, एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट, क्योंकि लायबिलिटी को क्रेडिट कर रहे थे, तो एसेट उल्टा होता है लायबिलिटी का, एक किसी से लेना है किसी को देना है। तो नेचुरली अगर मैंने पहले दो याद कर लिए, राइट, मतलब ये एक ही है बेसिकली, रूल तो इनका एक ही है। तो अगर मैंने ये याद कर लिया तो मुझे एसेट का तो याद करने की जरूरत नहीं है ना, मैं तो उसका उल्टा कर दूंगा, राइट? तो मुझे अगर रट्टा भी मारना है तो मैं, अगर मुझे पहला याद है तो जो मैं पहले में करता हूँ उसका उल्टा कर दूंगा तो एसेट में चले जाएगा, राइट? तो जब ये बढ़ रहा है तो डेबिट कर रहे हैं, कम कर रहे हैं तो क्रेडिट कर रहे हैं। फिर हमने पढ़ा एक्सपेंसेस और सॉरी रेवेन्यूज या इनकम्स। तो जब ये बढ़ रहे हैं तो क्रेडिट कर रहे हैं, ये कम होते ही नहीं है, मैंने आपको बोल दिया था, तो ये याद करने की जरूरत नहीं है। और ये थर्ड और फोर्थ जो है ये एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, जैसे पहला और दूसरा एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, तो थर्ड और फोर्थ एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। तो अगर मैंने थर्ड याद कर लिया कि अब ये बढ़ता है तो क्रेडिट करेंगे, तो मेरा एक्सपेंसेस एंड लॉसेस में जब बढ़ेगा तो क्या करेंगे, डेबिट करेंगे, डेबिट करेंगे, हाँ जी। ठीक है। तो ये बढ़ेगा तो डेबिट करेंगे। तो बेसिकली ऐसा नहीं है कि हमको बहुत सारी चीजों को याद रखने की जरूरत है, ये तो सिंपल वे हो गया ना कि भाई हाँ जी। एक दूसरे के रिलेटिव में हम एक दूसरे से कंपैरिजन करके ये देख बेसिकली सकते इस इन पांच भाई कितने, 1 2 3 4 5 5 में सिर्फ 2 ही याद करने हैं। हैं। हाँ,
दो नहीं तीन हो गए ना, हाँ दो याद करने हैं बेसिकली, दो ओ अगर वो तुम तो याद हाँ कर लोगे, हाँ जी एक ये वाला और एक ये वाला, तो बाकी हाँ दोनों तो उसके इन्वर्सली सेम हो चलेंगे, गए है ना। बाकी क्या होगा, जब ठीक आप है प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएगा, ये शुरू शुरू की बात है, ठीक है। ओके ओके ओके, सो नाउ हम एक बस सिंप्लीफाइड एक ट्रांजैक्शन करेंगे और कोशिश करेंगे कि वो हम सही करें, ठीक है। उसके पहले मैं आपको जनरल रूल बता देता हूं, जनरल रूल फॉर जर्नल एंट्रीज। जब भी हम शुरू शुरू में जर्नल एंट्री करने की कोशिश करेंगे, तो सबसे पहले हमको क्या ध्यान रखना है, हमको ट्रांजैक्शन को समझना है कि क्या हुआ है, व्हाट हैज हैपेंड, क्या ट्रांजैक्शन है। ओके, दूसरा हमारा फोकस क्या रहेगा, आइडेंटिफाई करेंगे हम, आइडेंटिफाई टू अकाउंट्स, कि दो ऐसी कौन सी चीजें हुई हैं इसमें, ये पांच में से हर ट्रांजैक्शन में दो ही मिलेंगे आपको, ठीक है। ये भी हो सकता है, तो ये चीजों को समझ लो, आइडेंटिफाई टू अकाउंट्स। तो टू अकाउंट्स कैसे हो सकते हैं, हम बोले एक दो तीन चार पांच, तो कैपिटल, लायबिलिटी, एसेट, इनकम और प्रॉफिट्स और लॉसेस और एक्सपेंसेस, राइट। और दूसरी तरफ है कैपिटल सेम, लायबिलिटीज, एसेट्स, इनकम और गेन्स और प्रॉफिट्स और लॉसेस और एक्सपेंसेस। तो कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, ओके, ये बात हमेशा याद रखना कि दो अकाउंट होंगे उसके अंदर, दो ही हमको आइडेंटिफाई करने हैं, ज्यादा हो सकते हैं बट हमको दो ही देखने कि दो कौन से रेलेवेंट अकाउंट हैं। तो ये कभी भी ऐसे हो सकता है, ये दो हो सकते हैं, 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 राइट। तो कैपिटल टू कैपिटल हो सकती है ट्रांजैक्शन, कैपिटल टू लायबिलिटीज हो सकती है, कैपिटल टू एसेट, कैपिटल टू इनकम, कैपिटल टू एक्सपेंस, राइट। तो कहीं पे भी जब हम दो अकाउंट देखेंगे, तो दोनों कैपिटल के भी हो सकते हैं, एक कैपिटल का एक लायबिलिटी का हो सकता है, कैपिटल का एक एसेट का हो सकता है, ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो कोई भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, मान लो इनकम है, इनकम और कैपिटल हो सकती है, इनकम और लायबिलिटी, इनकम और एसेट, कोई भी दो अकाउंट हो सकते हैं, इस चीज को याद रखना है हमको, ठीक है। तो हमेशा हमको दो अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है, पहले हम देखेंगे कि ट्रांजैक्शन क्या है, किस चीज की ट्रांजैक्शन हुई है, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कौन कौन से दो अकाउंट हैं, ठीक है। फिर हम फोकस में लाएंगे रूल्स को, कि भाई ये दो अकाउंट हैं, अब इसका रूल क्या है, उस अकाउंट का रूल क्या है, जो भी अकाउंट हमको मिले उसका नेचर क्या है, पहले हम देखेंगे उस अकाउंट का नेचर क्या है, नेचर मतलब कि कौन सा अकाउंट है, और फिर हम देखेंगे उसका फोकस लेके आएंगे कि रूल्स क्या है, ठीक है। फोर्थ हम क्या करेंगे, रूल्स को अप्लाई करेंगे, और फिफ्थ में क्या करेंगे, देन हम उसको एंट्री पास करेंगे। ओके, सो कोई भी ट्रांजैक्शन को ये पांच स्टेप के अंदर हमको लेके जाना है, चाहे थोड़ा हम स्लो चलें शुरू में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर हम ये स्टेप फॉलो करेंगे तो हमारा जर्नल बहुत हमको क्लियरली अंडरस्टैंड हो जाएगा, हमको समझ में आ जाएगा। और अगर हमको जर्नल आ जाता है तो मोस्टली हमारी +1 की अकाउंट्स टू अ लार्जर एक्सटेंट हमको समझ में आ जाएगी, कहीं भी डिफिकल्टी होगी हम जर्नल पे वापस आएंगे और हम समझ लेंगे ट्रांजेक्शन को, ठीक है। ओके, हाँ जी ओके, तो हम सिर्फ एक ट्रांजेक्शन आज करेंगे, बाकी की कल करेंगे ना, वही वाली ओके ट्रांजेक्शन करेंगे हम, स्टार्टेड बिजनेस, ए स्टार्टेड बिजनेस with cash of ₹50,000। ओके, अब हमको क्या करना है, ट्रांजैक्शन को समझना है क्या हुआ है, ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है कैश से, कैश 50,000 रुपए से, कैपिटल इंट्रोड्यूस हुआ है ना। तो क्या हाँ कौन सा एक अकाउंट तो कैपिटल हो गया, राइट, आपने बोला कैपिटल हाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, कैश हाँ और दूसरा क्या हो गया, कैश, राइट। कैश
ओके, कैपिटल का नेचर क्या है? 5 में अगर कैटेगराइज करना हो कैपिटल अकाउंट को, तो कैपिटल का नेचर तो कैपिटल ही है, राइट? कैपिटल, हाँ जी। और कैश का क्या नेचर है? कैश का एसेट हुआ। एसेट। वेरी गुड। चलो जी, पहुंच गए हम अगले स्टेप पे। ये पहला स्टेप था, ट्रांजैक्शन समझा, अकाउंट ये को सही है। आइडेंटिफाई। हाँ हाँ, एसेट है ना कैश, तुम्हारा तुम्हारे पास आया ना हाँ अभी हाँ कैश। हाँ। ठीक है, हाँ जी हाँ तो एसेट हो गया। अब रूल अप्लाई करेंगे। रूल क्या कहता है? एसेट का रूल क्या है? जी। एसेट बढ़ता है तो क्या एसेट है? इज इक्वल टू, अरे वो तो बढ़ता है ठीक है, तो डेबिट होता है, डेबिट। बढ़ता है तो डेबिट होता है। ये बढ़ा है कि कम हाँ हुआ जी। है कैश? बिजनेस के पास आया है बड़ा कि है। गया है? हाँ। तो क्या कर दे, आया है डेबिट। आया करेंगे। अच्छा एक मिनट रुको। ओके, सो रूल यहाँ पे लिखेंगे, बढ़ेगा तो डेबिट, राइट? डेबिट। कम होगा तो क्रेडिट। ये बड़ा है ना, ये बड़ा है, राइट? तो क्या होगा, यस। ये डेबिट होगा, राइट? कैपिटल का रूल क्या है? इंक्रीज होगा तो क्रेडिट। इंक्रीज होगा तो क्रेडिट, और डिक्रीज होगा तो डेबिट। डेबिट, हाँ जी। तो कैपिटल बढ़ा है कि कम हुआ है? इंक्रीज हुआ। इंक्रीज हो गया, तो इंक्रीज हो गया तो ये इंक्रीज हो गया क्रेडिट। तो क्रेडिट। चलो जी, एंट्री पास हो गई। कैश को डेबिट करेंगे और कैपिटल को क्रेडिट करेंगे। मैंने डबल एंट्री सिस्टम के शुरू में क्या बोला था? डेबिट्स आर ऑलवेज इक्वल टू क्रेडिट्स। ओके, तो यस। 50,000 इज इक्वल टू 50,000। हो गया ना एंट्री पास? हाँ जी। तो कैश डेबिट हो गया और कैपिटल क्रेडिट हो गई। गुड। एनी क्वेश्चन? नहीं, क्लियर। हाँ। चलो, वेरी गुड। कल मिलते हैं फिर, ठीक है? ओके हर्षिका, यस यस। इसको पढ़ लेना यार, ये मुझे पता नहीं है।